हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट न्यूज़ related to the 15 September 2022's Daily Hindu edition. So let's start with the news. Yeah. So we have some important news that is Congress meltdown in Goa as 8 of party's 11 MLAs defect to बीजेपी। ठीक है ना। तो एक बार आप देखेंगे कि जो डिफेक्शन है, ठीक है ना, ये फिर से आ गया है। तो अगर आप देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है दैट इज what is the total strength of Goa Legislative Assembly? तो इट इज 40 सीट असेंबली। ओके, उसमें से जो बीजेपी है, ओके, विच ऑलरेडी हैज 28 MLAs एंड नाउ इट्स स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज टू 28। और जो पूरा का पूरा जो रूलिंग कोलिशन है, उसका जो स्ट्रेंथ है इट इज 33 MLAs इंक्लूडिंग 2 ऑफ द महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी and 3 independents. Fine. So now here again the term which has come, that is a defection. Okay, तो defection क्या होता है कि जब crossing the floor from one party to another, that is called as defection. Fine. Now about defection, so we know जब महाराष्ट्र में हुआ था that शिवसेना issue, so we had done this defection. So we already know that जो anti defection law है इंडिया में, anti defection law. Okay, so it is under 10th schedule of the Indian Constitution, 10th schedule of the Indian Constitution, and it says that if the defection has taken place, okay, if the defection has taken place, then the member is liable to be disqualified from the house. ठीक है, तो ये होता है डिफेक्शन। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर 2/3 ऑफ द पार्टी लेजिस्लेचर, okay, 2/3 of the legislature members of the party which are the part of the legislature, अगर ये अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, ओके, इट इज कॉल्ड एज मर्जर। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है एक्चुअली इसका लैंग्वेज पे भी बहुत ज़्यादा इशू होता है कि द थिंग इज कि अगर हम ठीक से अगर पढ़ें एंटी डिफेक्शन लॉ, इट सेज दैट मर्जर बिटवीन टू पार्टीज विच हैज बीन एग्रीड बाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स of the party who are present in the who are the members of the house. ठीक है। बट नॉर्मली जो इंडिया में जो हम लोग देखते हैं वो ये देखते हैं कि if the 2/3 of the members they are leaving the party, 2/3 of the members of any party if they quit the party and join another party, तो उसको हम मर्जर मान लेते हैं, which is an exception under the anti defection law. The second is Hindi is not a competitor of regional languages according to our होम मिनिस्टर अमित शाह। तो यहाँ पे देखिए, ही हैज गिवन अ क्रूशियल डेटा दैट इज 6% ऑफ द चिल्ड्रन हु रिसीव एजुकेशन इन इंग्लिश, okay, and a large majority of people are not fluent in English, and if you will just see that this deprives them of a platform at the national and state level. उसके बाद now he is saying that there is a false campaign which is going on against the Hindi. So he is saying that while addressing at All India Official Language Conference in Surat on Hindi Divas, okay, so he had said that Hindi जो है it is not a competing language. Fine. If you will just see that Hindi का किसी language के साथ competition नहीं है, but Hindi is a very flexible language which take words from other language to expand its dictionary. Fine. उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सेंटर है, इट इज़ गोइंग टू पुश हिंदू यूज इन ऑफिस एंड बैंक्स अब्रॉड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इट हैज़ रिटन टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री टू प्रमोट द यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल वर्क इन बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, असेंबलीज, एम्बेसीज एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिस विच आर लोकेटेड इन द फॉरेन कंट्री। The next is cadets back at J&K Lake after 33 years. तो उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मनसबल लेक इन सेंट्रल कश्मीर. So it is once again open for training drills for the militaries after the period of 30 years. Okay, so यहाँ पे जो है वो military drill conduct कराती है, and now we can see that over 100 National Cadet Corps cadets from both J&K and outside, they have participated in this exercise which is conducted by Navy. The next is cabinet approves addition of 4 tribes to scheduled tribe list. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो यूनियन कैबिनेट है, it has approved the addition of 4 tribes to a list of scheduled tribes. These 4 tribes are from Himachal Pradesh, Tamil Nadu and Chhattisgarh.
तो यहाँ पे देखिए हम ट्राइब्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. सो सी हत्ती ट्राइब विच इज़ इन ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश. Then Narikoravan and the Kurivakkaran hill tribes of Tamil Nadu and Binjia tribe in Chhattisgarh. They okay, which is already listed as ST in Jharkhand and Odisha, but not in Chhattisgarh. Now they have been added under ST list. So the next is जो cabinet है, it is also approved a proposal to bring Gond community, which is spread across 13 districts of Uttar Pradesh under the ST list from the scheduled caste list. ठीक है, तो Gond community पहले it was under scheduled caste list, now it has come under ST लिस्ट. तो इसमें जो गोंड कैटेगरी जो है उसके 5 सब कम्युनिटीज इसमें हैं, दैट इज धुरिया, नायक, ओझा, पठारी एंड राजगोंड. अब नाउ कमिंग टू द बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, जो BCCI, यहाँ पे द इशू इज अबाउट द कूलिंग ऑफ पीरियड. ठीक है ना. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया है. वो ये कहा है कि जो लोधा कमेटी थी which was itself set up by the Supreme Court, it has suggested cooling off period. cooling off period का मतलब कि एक टर्म खत्म करने के बाद थोड़े टर्म के टाइम के बाद फिर से इलेक्शन के लिए आना, that is called as cooling off period. So the Supreme Court has made it clear that the cooling off period, that is 3-year period for BCCI office bearers, will kick in or will be applicable after they complete 2 consecutive terms in BCCI. ठीक है ना. तो अब इससे क्या होगा कि जो गांगुली एंड जय शाह, ओके, जो BCCI प्रेसिडेंट जो हैं सौरव गांगुली एंड सेक्रेटरी जय शाह, दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस फॉर सेकेंड टर्म इन अक्टूबर. नाउ द नेक्स्ट इज द एक्सप्लेनर सीरीज, दैट इज अंडरस्टैंडिंग यूक्रेन्स काउंटर ऑफेंसिव. So friends, we have seen that Ukrainian forces, they are able to push back Russian soldiers, especially from Kharkiv Oblast. Okay, and they have retaken thousands of square of kilometers which were earlier in the Russian control. तो यहाँ पे यूक्रेन जो कह रहा है that they have regained more than 3,500 square miles of territories, which also include important cities of Izium and Kuplansk. Okay, now these 2 cities, they are strategically located in the northeast Ukraine, which has seen many actions in the past from Russia. ठीक है. अगर अब हम देखेंगे जो काउंटर ऑफेंसिव है यूक्रेन का, देयर आर वेरियस रिपोर्ट्स विच सजेस्ट दैट अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, दे वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लानिंग द यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव. नाउ कमिंग टू सर्टेन फैक्ट्स, अगर हम देखेंगे तो इफ यू जस्ट सी दिस मैप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन सी रशिया एंड देन दिस इज यूक्रेन, दिस इज ऑल नॉर्थ एंड ईस्ट यूक्रेन. ओके, एंड द इंपॉर्टेंट सिटीज हैव बीन मार्क्ड ओवर हियर, and this is Crimea, which was annexed by Russia in 2014 itself. So since the war started on in February 2022, that is February 24th 2022, so these are the areas where Russians have targeted. Okay, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ रीजन ऐसे हैं जो February 24 के पहले ही कहीं ना कहीं रशिया का इनके ऊपर कंट्रोल था. दिस वर क्रीमिया, लुहांस्क एंड डोनेट्स्क. ओके, नाउ वंस द ऑफेंस स्टार्टेड, तो देखिए जो रशिया का कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा हो गया है. अब जो काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है यूक्रेन का, वो बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है. ओके, सो ओवर हियर दे हैव बीन एबल टू टेक इंपॉर्टेंट सिटीज लाइक इजियम एंड लाइमैन एंड यू कैन सी खार्किव ऑल्सो. तो पहले जो था जो रशिया यूक्रेनियन फोर्सेज, दे वर टारगेटिंग इन साउथ ईस्ट, so that the forces from Russia they could be mobilized over here, and then जैसे ही यहाँ पे Russian forces हटी, they were able to launch a counter offensive to regain control over this area. Okay, now see, let's start with the history of the war, which is very important. तो ये जो war है, it started on February 24th. Okay, and then we will see that in March Russia ने voluntarily announce किया withdrawal from 2 areas in Ukraine. One is Kyiv and the next is Kharkiv after Istanbul talks with Ukraine. Okay, अब यहाँ पे जो है Ukrainian troops, they have suffered a series of defeats in recent months. Some of these important defeats which they have suffered is in Mariupol, which is one of the important ports in this region, southeast region. Then Severodonetsk and Lysychansk. Okay, now when the war started, so we will see that Russia, it was controlling almost 25% of the यूक्रेन. यहाँ पे देखिए एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी है, दैट इज इट इज ऑल्सो यूरोप्स
largest country. Now if we will just see कि यहाँ पे रशिया it has taken huge losses in the battle for Donbass. So यूक्रेन ने इसी लॉस को कैपिटलाइज किया. यूक्रेन was also armed with advanced mid-range rocket systems such as high mobility artillery rocket systems which it gained from US. उसके बाद यूएस ने $14.5 का मिलिट्री असिस्टेंस भी किया था यूक्रेन को, एंड यूक्रेन वाज आल्सो रिसीविंग हेल्प फ्रॉम ब्रिटिश एंड यूरोपियन गवर्नमेंट. On the other side, Russia, it was finding it very difficult to ensure its supply, especially when the sanctions was imposed on Russia. एंड उसके बाद देखेंगे कि रशिया जो है वो ईरान और नॉर्थ कोरिया से वेस्ट ड्रोन्स और शेल्स की सप्लाई लेना स्टार्ट किया टू मेंटेन द supply. The next thing which has turned the tide of the war is involvement of American and British intelligence officials in organizing the counter offensive in Ukraine. ओके अब जो यूक्रेन की स्ट्रेटेजी है देखिए वो बहुत सिंपल है. यूक्रेन क्या किया, यूक्रेन ने पहला अटैक किया सदर्न यूक्रेन की एक सिटी है विच वॉज अंडर रशियन कंट्रोल, इट इज खैरसन. ओके जैसे ही वहां से आर्मी को मोबिलाइज किया गया साउथ की तरफ, उसके बाद यूक्रेन ने पूरा फोकस अपना नॉर्थ ईस्ट में रखा, दैट इज इन खार्किव. ओके नाउ इफ यू विल जस्ट सी रशिया स्ट्रेटेजी, तो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अभी तक यूक्रेन के ऊपर वॉर डिक्लेयर नहीं किया है. ही टर्म्स इट एज स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन. सो यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस है वो लिमिटेड है. ओके अगर रशिया को ये बैटल टर्न करना है तो आर्टिकल इज सजेस्टिंग दैट दे हैव टू डिप्लॉय मोर सोल्जर्स ओके फॉर टेकिंग सिटीज लाइक खैरसन, Zaporizhia, Luhansk and Donetsk. The next is here it is being discussed that बहुत क्रिटिसिज्म भी अब कुछ लोग कर रहे हैं इस मिलिट्री ऑफेंसिव का या रशिया का जो वॉर चल रहा है यूक्रेन में. ठीक है अगर आप देखेंगे यहाँ पे वॉटर रसल मीड है, इन्होंने कहा है कि जो क्रेमलिन है विच इज़ द सीट ऑफ गवर्नमेंट इन रशिया, इट हैज़ नो प्लेस फॉर वीक. बोलते हैं स्टार्टिंग से ही बैड वॉर्स हैव कॉस्ट रशियन रूलर्स डियरली. सो ही इज टॉकिंग, ही इज गिविंग सम हिस्टोरिकल एग्जांपल्स like Tsar Nicholas II. So he never recovered from Russia's humiliating defeat to Japan in 1904-1905. The next, the Soviet withdrawal from Afghanistan in 1989. It turned out to be very costly for Mikhail Gorbachev, who died recently. Then Russia's situation in Ukraine is far from an outright defeat or forced withdrawal, but a prolonged battle. Okay, it may make the things for Vladimir Putin more complex. The next is the lowdown on the essential medicine list. तो यहाँ पे हमने कल भी यूज किया था, so let's have a fast revision. तो एक होता है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन. ठीक है, दिस लिस्ट इज रिलीज्ड बाय नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी. इसका जो न्यूज़ है वो ये है कि रिसेंटली दिस लिस्ट वॉज रिवाइज्ड फॉर द 4th टाइम and now it includes total 384 drugs across 27 categories. इसमें 32 new drugs add किए गए हैं और 26 drugs has been excluded from national list of essential medicine. ठीक है, अब हम देखेंगे जो 4 मेजर इसमें क्या क्या डाला गया है, क्या क्या इसमें से निकाला गया है. So the 4 major anti-cancer drugs are hydrochloride, HCl trihydrate, lenalidomide and leuprolide acetate, okay, as well as psychotherapeutic drugs, nicotine replacement therapy and antiparasitic drugs like ivermectin, mupicorine and meropenem. These all are on the list. इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे there are 4 drugs which are still under patent and they are part of this list. Those are bedaquiline, delamanide, which are used in the treatment of MDR TB, that is multi-drug resistant TB. Then dolutegravir, which is used for the treatment of HIV. Then dactalacasavir, which is used in treating viral infections such as hepatitis B. Then certain other medicines like endocrine medicines and contraceptives like these medicines which has been mentioned over here, they have been also added in the list. उसके बाद montelukast, which is in respiratory tract. Then certain drugs like latanoprost and cardiovascular medicines, okay, they all are part of this list. अब इसमें जो हटाया गया है देखिए इसमें क्या है, गैस की गोलियां हटाई गई हैं. देन रैनिटिडीन हटाया गया है, देन सुक्रलफेट हटाया गया है, एंड देन वाइट पेट्रोलैटम, एंड देन एटेनोलोल एंड
मिथाइल डोपा फॉर हाई ब्लड प्रेशर, दे ऑल हैव बीन रिमूव्ड। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका पर्पस क्या होता है, निकालना या ऐड करना। तो कोई भी ड्रग को इंक्लूड कब किया जाता है, व्हेन दैट ड्रग इज यूजफुल इन ट्रीटिंग डिजीज व्हिच इज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया एंड दैट ड्रग हैज टू बी लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। बाद में उसका एक सेफ्टी प्रोफाइल जो है बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस वो भी अवेलेबल होना चाहिए, एंड देन दे हैव टू बी रिकमेंडेड अंडर द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया। अगर किसी भी एक डिजीज के लिए मोर देन वन ड्रग इज अवेलेबल तो हम क्या करते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं विच इज बेस्ट सुटेड मेडिसिन ऑफ दैट क्लास। ओके, अब हम देखिए डिलीट कब करते हैं किसी भी मेडिसिन को। सो मेडिसिन इज डिलीटेड ओके from the list if there are reports of concerns on safety profile, okay, and if a medicine with better efficacy and cheaper version is available। अगर हम देखेंगे या कोई ऐसा डिजीज है विच इज़ नो लॉन्गर अ नेशनल हेल्थ कंसर्न तो उसके जितने भी ड्रग्स हैं वो वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। सेकेंड इज एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में इफ दैट इट इज़ ऑब्जर्व दैट वो बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है जिससे एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, फाइन, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है बॉडी में, तो ऐसे ड्रग्स को भी निकाल सकते हैं। फाइन, द नेक्स्ट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ NLEM दैट इज नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का पर्पस क्या है। सो वन बाय वन देखिए। द फर्स्ट इज रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन बेस्ड ऑन 3 एस्पेक्ट्स दैट इज कॉस्ट, सेफ्टी एंड एफिकेसी। द सेकेंड वन is the optimum utilization of healthcare resources and budget, then drug procurement policies, health insurance, prescribing habits, medical education, training, drafting and pharmaceutical policies। उसके बाद हम नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन देखेंगे। पहली बार ये फॉर्मुलेट हुआ था 1996 में, उसको 3 बार रिवाइज किया गया है, दैट इज 2003, 2011 एंड 2015। फोर्थ टाइम इट हैज बीन रिवाइज्ड इन 2022। The next is no specific law against hate speech says election commission। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हेट स्पीच और रूमर मॉन्गरिंग से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है, और इलेक्शन कमीशन जब इसे डील करती है सो इट डील्स अंडर इंडियन पैनल कोड एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। सो दिस आर सम ऑफ द एक्ट्स विच इलेक्शन कमीशन अप्लाइज टू डील विथ हेट मॉन्गरिंग, हेट स्पीच एंड रूमर मॉन्गरिंग। तो अब यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इट इज सेइंग दैट द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स 267th रिपोर्ट which is related with hate speech. Now this is very important. It has not made any recommendations with regard to specific query on whether the Election Commission of India should be conferred with the power to derecognize a political party for committing the offense of hate speech. ठीक है, this is important. The next is Election Commission says कि जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है वो ये भी नहीं कहती है कि पार्लियामेंट को कोई ऐसा लॉ पास करना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करे to deal with the hate speeches and rumor mongering. The next is one problem less on border. So over here we are discussing about the patrolling point 15. So India on Wednesday has recognized that the latest disengagement at patrolling point 15 in Gogra Hot Spring area in eastern Ladakh is one problem less. So he was speaking at a joint press meeting with visiting French Foreign Minister Catherine Colonna. Okay, so here India has made that statement. Now this disengagement at patrolling point 15 it comes few days earlier before the start of SCO summit in Samarkand in Uzbekistan, which is the hosting country for SCO this year. Next year the hosting country will be India. Okay, now again coming to Shanghai Cooperation Organization. So here the statement is that it fights anti-West dictators club tank. ठीक है, तो SCO है जो अभी उज्बेकिस्तान के अंदर होने वाला है। यहाँ पे 15 कंट्रीज आर गेटिंग रिप्रेजेंटेड। ओके, हो सकता है कि इस बार ईरान एक नया मेंबर बन जाए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, सो ओवर हियर इफ यू विल जस्ट सी कि जो कुछ कंट्रीज हैं जो इसके ऑब्जर्वर्स या मेंबर्स हैं लाइक रशिया, ईरान, चाइना, बेलारूस एंड टर्की, दे हैव फाउंड अ कॉमन कॉज दैट टू प्रमोट SCO नॉट एज अ एंटी वेस्ट डिक्टेटर क्लब, ओके, but based on cooperation and peace and stability in the world. The next is you can see a clarification over here. कल हमने पढ़ा था कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा एंड देन देयर विल बी ओनली वन नंबर दैट इज 112। अब उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया गया है दैट
helpline number 1098 which will remain in service. Okay, it is going to operate and it will be just integrated with national emergency number 112 to ensure its interoperability and enhancing the scope of emergency services available to children. Fine. तो हम देखेंगे जो हेल्पलाइन नंबर है 1098. ओके, सो इट इज इन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015. कुछ दिन पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था. एंड नाउ वी विल सी दैट इट इज हैंडल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. नाउ सी द नेक्स्ट इज कि इसको इंटीग्रेट करने की हम बात क्यों कर रहे हैं 112 से. तो सी द एग्जिस्टिंग चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर 1098 इट इज लिमिटेड टू ओनली 603 districts out of 750 plus district in the country. Fine. So the process of reaching out to a child takes about 60 minutes, which is absolutely unsatisfactory. तो वो क्या होगा कि if 1098 is also integrated with 112, okay, so जो इसकी रिच है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी. The next is about inflation. So we can see the wholesale inflation, it has slowed to a 11-month low at 12.4% in August. कुछ दिन पहले हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पढ़ा था. तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो कितना है 7% है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स. तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इट हैज़ कम टू 12.4% फ्रॉम 13.9%. नाउ अगर आप देखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 6.7% टू 7%. और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है दैट हैज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम 13.9% टू 12.4%. ठीक है. द मेन रीजन फॉर द राइज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाज राइज इन फूड प्राइसेस. ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे WPI का बात करेंगे. सो WPI है पिछले 17 महीनों से 10% के ऊपर है. ठीक है. तो यहाँ पे हम देखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग, देखिए वेटेज की बात होती है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड का वेटेज ज़्यादा है तो फूड का प्राइसेस बढ़ा, इसीलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ गया. WPI में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का वेटेज ज़्यादा है. तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग के गुड्स में इन्फ्लेशन ईज हुआ दैट इज एट 7.5%. ओके, अब देन यू विल सी फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन, वो भी घट गया फ्रॉम 43.8% टू 33.7%. देन सिर्फ प्राइमरी आर्टिकल्स में इन्फ्लेशन बढ़ा है दैट इज फ्रॉम 14.9% टू 15%. ओके, बट WPI में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज ज़्यादा है इसीलिए द इन्फ्लेशन हैज स्लोड डाउन. द नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट्स डिप टू अ 9-month लो आफ्टर ग्रोथ स्लोज. तो जो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है इट ग्रू एट 16% इन अगस्त टू $33.92 बिलियन. ओके, और जो इम्पोर्ट है वो सीधा जंप किया बाय कितना 37.3% फ्रॉम 2021 लेवल्स टू अब कितना है हमारा इम्पोर्ट दैट इज $61.9 बिलियन. नाउ द ट्रेड डेफिसिट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दैट इज $27.98 बिलियन विच इज लोअर देन $28.7 बिलियन in the last month. Now the next is engaging with caution. So this is discussing about the LAC issue. So as we have already discussed that India and China, they have announced this engagement from patrolling point 15 in LAC and they will be creating buffer zones. This escalation has also taken place earlier in Galwan Valley, north and south of Pangong Lake and patrolling point 17A in Gogra. ठीक है. Now the second is some of the friction points remains that two area is Demchok and Depsang. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो डेमचौक और देपसांग ये दो एरिया ऐसे हैं यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, यहाँ पे जो डिस्प्यूट है इंडिया चाइना का वो गालवान वैली 2020 से पहले का है विच इज रिगार्डेड एज लीगेसी इशू. सो विच चाइना इज नॉट रेडी टू डिस्कस बिकॉज दिस आर द स्टैंड ऑफ विच प्रीडेट्स द करंट टेंशंस. The next is about inflation that is tax on the poor. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा है which comes from NSO is talking about consumer price index. So it is still at 7%. तो जो RBI का जो टॉलरेंस लिमिट है वो 6% होता है अपर टॉलरेंस लिमिट और वो पिछले 8 महीने से 7% पे है. ठीक है. और यहाँ पे हम पहले से जानते हैं that it was consumer food price index which increased by 93 basis point to 7.62%, which has largely driven the
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो रूरल कंज्यूमर है, रूरल इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी अर्बन इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम की बात क्या है, प्रॉब्लम की बात देखो सिंपल है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो फूड के प्राइसेस की वजह से बढ़ रहा है। अब हम अगर खारिफ सीजन की बात करें, सो ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जो राइस सोइंग हुई है इस साल वो पिछले साल से कम है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में फूड इन्फ्लेशन इज गोइंग टू इंक्रीज मोर। नाउ इन ऑर्डर टू डील विद दैट सिचुएशन, तो आप जैसा कि जानते हैं कि सेंटर ने रिसेंटली इम्पोज किया है टैरिफ एंड अदर कर्व्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती राइस, बट even this is not able to control the food inflation. Now friends, the next is water, India's growing water crisis, the seen and the unseen. तो यहाँ पे हम कुछ facts लेते हैं which is very important for us. तो यूनेस्को का एक यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ठीक है ना, सो इट हैज this saying that there is a global concern over the sharp rise in fresh water withdrawals from streams, lakes, aquifers and human-made reservoirs. Then नया रिपोर्ट है that is called as Water Report on Food and Agriculture Organization of United Nations. So it is saying that water is currently a silent crisis which is assuming a global dimension where millions of people will be deprived of water to live and sustain their livelihood. Okay. अब हम देखेंगे वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मार्च। तो 2007 में द वर्ल्ड वाटर डे का जो थीम था, it was dealing with this thing only, coping with water scarcity. अब अगर हम देखेंगे कि there is one map which is the global drought risk and water stress map which shows that in India, major parts of India which are in west, central and peninsular India, they are water stressed. उसके बाद नीति आयोग ने एक इंडेक्स निकाला था that is called as composite water management index. तो उसने भी एक कंसर्न शो किया था that more than 600 million people are facing acute water shortage in India. Now, the potential outcome of this water shortage will be sectoral and regional competition for water between rural and urban transfer of water. ठीक है ना, जैसे कि हम देखेंगे अर्बन एरिया जो है, ठीक है ना, सो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है बट वाटर कम होता है, सो फ्रॉम देयर वेयर दे गेट द वाटर फ्रॉम रूरल एरिया, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस बाउंड्री ट्रांसफर ऑफ वाटर बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया विच हैज सीन अ राइज इन दिस सेंचुरी. ओके, नाउ लेट्स कम टू अनदर डेटा. इफ यू विल जस्ट सी दैट आज सेंसस 2011 में जो अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया का, इट इज 34% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, but if you will just see that by 2030 this population will reach 40% of the total population of India, and by 2050 50% of the Indian population will be living in cities. ठीक है ना, so if you will just see कि आने वाले टाइम में जो डिमांड फॉर वाटर है इन अर्बन एरिया, ठीक है ना, डिमांड फॉर वाटर इन अर्बन एरिया, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर अर्बन एरिया कंटिन्यू टू डिराइव वाटर फ्रॉम रूरल एरिया, so definitely what is going to happen, there will be conflict between rural and urban area pertaining to water which needs to be resolved. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.